اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، ہیکل سلیمانی ایک ایسا ہیکل ہے کہ جس کے تعمیر ہوتے ہی قیامت کی وہ سب سے بڑی نشانی پوری ہو جائے گی کہ جس خوفناک نشانی کے پورا ہونے کا انتظار اہل کفر بے صبری کے ساتھ کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہیکل سلیمانی کیا ہے اور اس کی تعمیر کب ہوئی اور اہل کفر اس ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیوں کرنا چاہتے ہیں، اور اس ہیکل سلیمانی کے ساتھ قیامت کی کون کون سی بڑی بڑی نشانیوں کا تعلق ہے، اور اس ہیکل سلیمانی یعنی تھرڈ ٹیمپل کے تعمیر ہوتے ہی اس دنیا کے حالات کیسے ہو جائیں گے اور اس دنیا کے اندر کون کون سی تبدیلیاں رونما ہوں گی، اور یہودی قوم خانہ کعبہ کو چھوڑ کر ہیکل سلیمانی کی طرف رخ کر کے کیوں عبادت کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کروائی اور اب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر کتنی بار ہو چکی ہے اور کتنی مرتبہ یہ تباہ ہو چکا ہے۔ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، یہ دنیا کے بدلتے حالات اور دنیا کے اندر خون ریزی کا عام ہونا اور مسلمانوں کو چن چن کر ان کا قتل عام کیا جانا، یہ قیامت کی وہ بڑی نشانی ہے کہ جس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا اور ان کو چن چن کر قتل کیا جائے گا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی اس نشانی کو بیان کیا تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا اس وقت ہم یعنی مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مسلمان اس وقت تعداد میں کم نہیں ہوں گے، بلکہ مسلمانوں کے درمیان وہن یعنی دنیا کی محبت آ جائے گی، یعنی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ ذات اور دین اسلام کو چھوڑ کر دنیا کے پجاری بن جائیں گے۔ پیارے دوستو، آج کے اس دور میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ نشانی لفظ با لفظ مکمل طور پر پوری ہو چکی ہے، اور آج پوری دنیا کے مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑے ہیں اور دن رات دنیا کا مال و دولت جمع کرنے کے لیے پاگل ہو رہے ہیں۔ پیارے دوستو، یہی وجہ تھی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرب قیامت کے فتنوں کو بیان کرتے تو صحابہ کرام زاروں کی طرح رونے لگ جاتے، کیونکہ قرب قیامت کے اس دور کے اندر ایمان بچانا اس طرح ہو جائے گا جس طرح اپنی ہتھیلی پر آگ کا انگارہ رکھنا۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی یعنی تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا کیوں ضروری ہے اور اہل کفر تھرڈ ٹیمپل کو بنانے کے لیے کیوں پاگل ہو رہے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہیکل سلیمانی یہ ایک ایسی عمارت ہے کہ جس کو خانہ کعبہ کے بعد مسلمانوں کے لیے بطور عبادت گاہ بنایا گیا، جہاں تمام تر بنی اسرائیل کے مسلمان اکٹھے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بیت المقدس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہیکل سلیمانی کی سب سے پہلی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانہ اقدس میں رکھی، اور یہ تعمیر مقدس صندوق یعنی تابوت سکینہ کو محفوظ جگہ پر رکھنے کے لیے کی گئی، کیونکہ تابوت سکینہ ایک مقدس اور بابرکت صندوق تھا کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو سکون اور قرار عطا فرماتا اور دشمنوں پر غلبہ عطا فرماتا۔ پیارے دوستو، تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا میں نازل کیا گیا، اور یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور اس طرح حضرت شیس علیہ السلام کے بعد جو بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لاتے گئے، اسی طرح یہ تابوت سکینہ ان کو وراثت کے اندر ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ تابوت سکینہ انبیاء کرام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ پیارے دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے شر سے نجات عطا فرمائی، تو اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا اور قوم بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان قوم بن گئی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو صحرائے سینا کے اندر بھٹکا دیا، اور یہ کئی دنوں تک صحرائے سینا کے اندر بھٹکتے رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کو معاف کر دیا، اور ان کے سکون اور قرار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تابوت سکینہ عطا فرمایا۔ اس تابوت کے اندر پہلے تمام تر انبیاء کرام کے تبرکات موجود تھے، جس کی برکت سے قوم بنی اسرائیل ہر میدان کے اندر فاتح قرار پاتی۔ پیارے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل پر اپنی رحمت کا نزول فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تابوت سکینہ عطا فرمایا، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بابرکت صندوق کو ایک محفوظ مقام پر رکھنے کے لیے ایک خیمہ بنایا، اور اس خیمے کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
उसी खेमे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करते। चुनाचे इसके बाद जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौरे हुकूमत आया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फलस्तीन के बादशाह बने, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसी मकाम पर जहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना के लिए खेमा बनाया था, उसी मकाम पर हैकल सुलेमानी की बुनियाद रखी। इस तरह हैकल सुलेमानी की तामीर की बुनियाद सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह इसी हैकल सुलेमानी के अंदर जहाँ पर ताबूत सकीना को रखा गया था, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहा करते। अभी हैकल सुलेमानी की तामीर मुकम्मल नहीं हुई थी कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त आ गया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को पूरा करते हुए इस दुनिया फानी से तशरीफ ले गए। इसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौरे हुकूमत आया। इनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने मनसब नबूवत पर फाइज फरमाया था और एक आली शान बादशाहत अता फरमाई थी। प्यारे दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के वो बरगुज़ीदा नबी थे कि जिनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी और इनका तख्त हवाओं के अंदर उड़ा करता था और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ये शान अता फरमाई थी कि इस दुनिया और कायनात की हर एक मखलूक आपके ताबे थी और आपका हुक्म मानने की पाबंद थी। चुनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तामीर का काम जारी रखा जिस तामीर को उनके वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शुरू करवाया था। चुनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी की इस तामीर का काम उसी तरह जारी रखा जिसकी बुनियाद उनके वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी थी। चुनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में हैकल सुलेमानी की तामीर जिन्नात की मदद से की गई। जिन्नात दूर दराज से बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर लाते और इस हैकल सुलेमानी की तामीर करते। लेकिन जिस हैकल सुलेमानी की तामीर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने से शुरू हुई थी, ये तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में भी मुकम्मल न हो सकी और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बता दिया गया कि आपके जाने का वक्त करीब आ चुका है। चुनाचे उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये चाहते थे कि हैकल सुलेमानी मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाए और किसी तरह मेरी वफात का इल्म जिन्नात को ना हो ताकि ये जिन्नात अपना काम मुकम्मल कर सकें। चुनाचे उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को ये हुक्म दिया कि वो उनकी इबादत के लिए शीशे का एक कमरा तैयार करें जिनके अंदर वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर सकें। इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक शीशे का एक कमरा तैयार किया गया जिसके अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने असा मुबारक से टेक लगाकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए खड़े हो गए। इस तरह जिन्नात उस हैकल सुलेमानी की तामीर के अंदर मशगूल रहते और वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखते कि वो खड़े होकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहे हैं। चुनाचे इसी दौरान अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पूरा हुआ और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज कर लिया गया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक उसी तरह असा मुबारक के सहारे खड़ा रहा जिससे जिन्नात को ये मालूम होता कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इबादत कर रहे हैं और वो जिन्नात उसी तरह पूरी तवज्जो के साथ हैकल सुलेमानी की तामीर के अंदर मसरूफ रहे। यार दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब हैकल सुलेमानी की तामीर मुकम्मल हो गई तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के असा मुबारक को दीमक ने खा लिया और दीमक लगने की वजह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का असा मुबारक टूट गया और आपका जिस्म मुबारक जमीन पर तशरीफ ले आया। इसके बाद जिन्नात को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का इल्म हुआ। इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर हैकल सुलेमानी की सबसे पहली तामीर मुकम्मल हुई। यार दोस्तों, इस हैकल सुलेमानी को बहुत ज्यादा आलीशान बनाया गया और इस इमारत के 3 हिस्से थे। इस हैकल सुलेमानी का बैरूनी हिस्सा आम लोगों के लिए इबादत के लिए मुकर्रर किया गया और हैकल सुलेमानी के दरमियानी हिस्से में उलमाए कराम, औलिया कराम और अंबिया कराम और उनकी आल औलाद अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करती, जबकि हैकल सुलेमानी के सबसे अहम और पहले हिस्से के अंदर ताबूत सकीना को रखा गया। इस हिस्से के अंदर सिवाय अंबिया कराम या सबसे बड़े उलमा कराम के अलावा किसी को भी दाखिल होने की इजाजत न थी। यार दोस्तों, इस हैकल सुलेमानी की पहली तामीर के बाद वक्त यूं ही गुजरता गया और वक्त के साथ साथ ये कौम बनी इसराइल फिर से अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों के अंदर मुब्तला हो गई। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज्यादा अंबिया कराम को मबूस फरमाया, लेकिन ये कौम हर बार अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान हो जाती और तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाती। चुनाचे जब ये कौम फिर से अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान हो गई और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने लगी, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने बख्त नसर बादशाह को अपना अजाब बनाकर इस कौम पर नाजिल फरमाया और बख्त नसर बादशाह ने यहूदियों को चुन चुन कर इनका कत्ले आम किया और हैकल सुलेमानी को तोड़ दिया और हैकल सुलेमानी के अंदर मौजूद तमाम तर मुकद्दस किताबों को जला दिया और खजानों को लूट लिया और इस हैकल सुलेमानी के अंदर मौजूद ताबूत सकीना को भी अपने कब्जे में ले लिया। इस तरह बख्त नसर बादशाह बनी इसराइल के लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब बनकर नाजिल हुआ और इनको चुन चुन कर इनका कत्ले आम किया
اور हैकले सुलेमानी को जला दिया और ताबूत सकीना को अपने साथ ले गया। लेकिन बख्त नसर बादशाह ने भी ताबूत सकीना की बेहुरमती की और ताबूत सकीना को कचरे के ढेर पर फेंक दिया। इस बेहुरमती की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने बख्त नसर बादशाह पर भी अपना अजाब नाजिल फरमाया और ईरानी हमला आवरों ने बख्त नसर बादशाह पर हमला कर दिया और बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया। इस तरह एक बार फिर बनी इसराइल की कौम बैतुल मुकद्दस के अंदर दोबारा से आबाद हो गई। पहले हैकल की तबाही के बाद इस कौम बनी इसराइल ने दोबारा से 70 साल बाद हैकले सुलेमानी की तामीर की और ये हैकले सुलेमानी की दूसरी तामीर थी। इस दूसरी तामीर के अंदर हैकले सुलेमानी को तो तामीर कर लिया गया, लेकिन इस हैकले सुलेमानी के अंदर एक चीज की कमी थी और वो थी ताबूत सकीना की कमी, कि जिसकी वजह से हैकले सुलेमानी को तामीर किया गया और जिसकी बरकत से कौम बनी इसराइल हर मैदान के अंदर सुरखरू होती। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि बख्त नसर बादशाह के बाद ताबूत सकीना कहीं गुम हो गया और ये ताबूत सकीना कहाँ चला गया ये आज तक किसी को कुछ पता न चला। और यही वजह है कि आज तक बनी इसराइल यानी यहूदी कौम उस ताबूत सकीना को हासिल करने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ताबूत सकीना की बरकत से यहूदियों को उनका खोया हुआ वकार वापस मिल सके और यहूदी कौम पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी कर सके। क्योंकि यहूदियों का यह अकीदा है कि अगर उनको ताबूत सकीना मिल गया तो वो पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस दूसरी तामीर के बाद जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना शुरू हुआ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नबी बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के मुसलमानों को हक की दावत दी और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया। लेकिन बनी इसराइल की कौम हमेशा की तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान हो चुकी थी और हमेशा की तरह इस कौम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर मजालिम ढाने शुरू कर दिए और उनको तरह तरह की तकलीफें और अजीतें देना शुरू कर दी और उनको कत्ल करने की धमकियां देने लगे। यार दोस्तों, इस तरह जब इस यहूदी कौम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का पूरा मंसूबा बना लिया, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया और उनके जिंदा आसमानों पर उठाए जाने के बाद कौम बनी इसराइल पर फिर से अल्लाह तबारक व तआला का अजाब नाजिल हो गया। और इस बार अल्लाह तबारक व तआला का ये अजाब एक रूमी जनरल की शक्ल में था, जो कि बख्त नसर बादशाह से भी कहीं ज्यादा सख्त था। इस रूमी जनरल ने लाखों यहूदियों का कत्ले आम किया और हैकले सुलेमानी को एक बार फिर से तबाह बर्बाद कर दिया और तमाम यहूदियों को बैतुल मुकद्दस से निकाल दिया। इसके बाद फलस्तीन के अंदर बनु इस्माइल आबाद हो गए और उन्होंने हैकले सुलेमानी की जगह मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस की तामीर की। प्यारे दोस्तों, मस्जिद अक्सा ये वो बाबरकत मस्जिद है कि जो मुसलमानों का किबला अव्वल है और इसी मस्जिद के अंदर हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात तमाम अंबिया कराम की इमामत कराई और इस तरह इस मस्जिद को तमाम अंबिया कराम की हाजिरी का शरफ भी हासिल है। प्यारे दोस्तों, आज इस मकाम पर मस्जिद अक्सा तामीर है। इस मकाम पर यहूदी थर्ड टेम्पल यानी हैकले सुलेमानी की तीसरी तामीर करना चाहते हैं। उनका ये मानना है कि मस्जिद अक्सा के नीचे ताबूत सकीना दफन है, इसी वजह से वो मस्जिद अक्सा को गिराकर उस ताबूत सकीना को हासिल करना चाहते हैं और हैकले सुलेमानी की तीसरी तामीर यानी थर्ड टेम्पल को तामीर करना चाहते हैं। उनके नजदीक थर्ड टेम्पल के तामीर होते ही उनका वो मसीहा कि जिसका वो सदियों से इंतजार कर रहे हैं और जो क़यामत की सबसे बड़ी और खौफनाक निशानी है कि जिसका जिक्र सुनते ही सहाबा कराम भी ज़ारों की तार रोने लग जाते, यानी दज्जाल इस दुनिया के अंदर जाहिर हो जाएगा और इनके मसीहा दज्जाल के इस दुनिया में आते ही ये लोग पूरी दुनिया पर काबिज हो जाएंगे और पूरी दुनिया पर इन लोगों की हुकूमत हो जाएगी। इसी वजह से ये लोग मस्जिद अक्सा को गिराकर यहाँ पर थर्ड टेम्पल को तामीर करना चाहते हैं, ताकि जल्द अज जल्द इनका मसीहा इस दुनिया में आए और ये लोग पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर सकें। यार दोस्तों, चूंकि हैकले सुलेमानी यहूदियों की सबसे पहली इबादत गाह थी, लिहाजा इसी वजह से ये लोग खाना काबा को छोड़कर हैकले सुलेमानी की तरफ मुंह करके इबादत करते हैं और खाना काबा जैसे मुकद्दस घर को अहमियत नहीं देते।